Good afternoon. Today we are going to have a short session for completing our uh, software component of a hydroponics. So software component is something. If we just something try to recall that what we discussed on this different components of a hydroponic. So far we discussed all the component of a hardware. So if we see the hydroponic components, they are the two. So you can just something differentiate into a two parts. One is a hardware. Hardware include all the infrastructure part of your hydroponic project, or whatever you are doing as a hobby also. So hardware includes all those infrastructures like if you are doing this pipe, pump, fertigation, fogging, misting, and if you are going for a commercial project, then greenhouse, and even the fertigation system, everything will come under hardware. And the second component is the software. Means if I'm talking about the software component of a hydroponic, so that how to grow your crop, because that is the most important thing for ensuring success of any hydroponic project. If I give us something weightage of these hardware and software component for the success of any hydroponic project, so the ratio comes and around 20% is from 20 to 30% from a hardware, right, hardware, and 60 to 70 or 80% is coming from the software, means how to grow your crop. And specifically if you talk about more technical terms, so the crop production protocol. So let's talk about those component of software. Like what are those component of a software in hydroponics? So the first thing, whenever you plan your any hydroponic project, it comes that crop and variety. Because ultimately, what is going to happen is until and unless you identify a right crop by which you can realize a better margin, you will not be able to ensure a desired or expected return. So what we need to do, we need to select our crop. Now, how to select that crop? The first step for any hydroponic project should be selecting your crop. And how to select your crop? If you are doing for a hobby purpose, then your requirement, घर की जो requirement है, जो आपकी घर की जरूरत है, उसको आपको क्या कहते हैं, select करना है. बट अगर आप कॉमर्शियल प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, तो कॉमर्शियल प्रोजेक्ट में आप वही क्रॉप सेलेक्ट करेंगे जिसका कि बाजार में आपको अच्छा भाव मिल जाता है. सो इन अ रफ एस्टिमेट अगर मैं आपको दूं, तो अगर कोई भी क्रॉप आपको एवरेज साल भर में जब आप प्रोड्यूस करके बाजार में ले जाते हैं 80 से 100 रुपए का किलो बिक जाता है, देन दैट क्रॉप इज द गुड फॉर योर हाइड्रोपोनिक सिस्टम. So the selection need to be based on, if hobby, then your own consumption. If it is a commercial, then you have to see that what price you can sell your crop. So you should not go for just growing a spinach if you are not able to sell means at a decent price. Because अगर पालक की बात करें तो स्पिनिच पालक जो है आपका जब सप्लाई में आता है तो उसका रेट बहुत कम हो जाता है. But for me, like as the project I'm handling, where I can sell my spinach also as 1,000 rupees kg, then it is good for me. So the crop selection is the most important thing for ensuring better return or revenue. Once you identify that, oh, these are the 5 crops which I can take in my hydroponic project, then the next step comes selection of a variety. Because every crop is having good number of varieties. So those varieties need to be selected as per your area requirement and area की जो environment होता है उसके बेस पे जो the best variety आपकी उस एरिया में परफॉर्म कर रही है, उस variety को आपको select करना है. कुछ कंपनियों ने, सीड कंपनियों ने ऐसी वैरायटी भी बनाई है जो कि प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में
यूज हो सकती है स्पेसिफिकली। तो अगर आप कमर्शियल प्रोजेक्ट में जा रहे हैं तो आपको प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन वैरायटी को प्रेफर करना चाहिए। तो जब वैरायटी का सिलेक्शन करने लगेंगे तो आपको दो तीन चीजें ये देखनी कि भाई ये वैरायटी जो है किस इन्वायरमेंट में अच्छे से परफॉर्म करती है, और उसके बाद उसका एक जेनेटिकल पोटेंशियल होता है कि भाई अगर एक वैरायटी का जेनेटिकल पोटेंशियल जो होता है वो आपका अच्छा या हाई नहीं होगा तो आप चाहे जितना भी अच्छी प्रैक्टिस कर लें आपकी पैदावार ज्यादा नहीं होगी। सो यू हैव टू डिसाइड बेस्ड ऑन द वैरायटी की रिक्वायरमेंट, क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट क्या है और उसके साथ साथ उसका जेनेटिकल पोटेंशियल क्या है। सो बेस्ड ऑन दैट फर्स्ट वी सेलेक्ट द क्रॉप एंड देन वी सेलेक्ट द वैरायटीज। एंड जब वैरायटी सेलेक्ट करने लगे शुरू में तो 2 या 3 डिफरेंट वैरायटीज एक क्रॉप की लें, जिससे आपको ट्रायल करके पता चल जाए कि भाई ये वाली वैरायटी हमारी अच्छी परफॉर्म करती है। स्ट्रेटजी फॉर ऑफ वैरायटी सिलेक्शन, जब आप कमर्शियल, दिस इज एब्सोल्युटली फॉर द कमर्शियल प्रोजेक्ट के लिए होता है कि भाई आप कमर्शियल प्रोजेक्ट में जब आप वैरायटी सेलेक्ट कर रहे हैं या क्रॉप सेलेक्ट कर रहे हैं, एक जैसे आप टमाटर की बात करें या चेरी टमाटर की बात करें तो उसमें क्या होना चाहिए कि आपका 80 to 90% जो कॉमन बाजार की रिक्वायरमेंट है उस तरीके के वैरायटी को सेलेक्ट करके लगाना चाहिए, एंड 10 से 20% ऐसी यूनिक वैरायटी सेलेक्ट करनी चाहिए जो कि आसपास में कोई नहीं ग्रो कर रहा है। जैसे आप देखें तो चेरी टमाटो का एक टमाटो आया है जो कि हार्ट शेप का होता है। There is a cherry tomato which is a pear shaped cherry tomato, but उसकी जो मार्केट में रिक्वायरमेंट होगी वो बहुत कम होगी बिकॉज बाजार में उसका पता नहीं होगा लोगों को। तो इसलिए जो आपका सिलेक्शन होना चाहिए पूरे से एरिया के लिए वो आपका कॉम्बिनेशन में होना चाहिए कि 90% आप वही वैरायटी लीजिए जो वैरायटी आपकी बाजार में सबसे ज्यादा चल रही है, जिसकी डिमांड मार्केट में है। 10 से 20% आपको इस तरीके की यूनिक वैरायटीज के सीड लेने पड़ेंगे, जिससे क्या होगा कि आप जो भी आपका बायर होगा अगर वो नॉर्मल वैरायटी का टमाटो आपसे खरीद रहा है तो साथ में अगर आप उसको एग्जॉटिक वैरायटीज या समथिंग ऐसी वैरायटी जो आपके एरिया में नहीं है वो भी देंगे तो वो आपसे लगातार जुड़ा रहेगा। अब जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी खेती में होती है वो कीड़े मकोड़े और बीमारियों की होती है। तो जब आप वैरायटी सेलेक्ट कर रहे हैं उसी समय देखें कि हमारी जो वैरायटी है वो किन इंसेक्ट और डिजीज से रेजिस्टेंस है या उससे ससेप्टेबल है। अगर वो डिजीज पर्टिकुलरली उस एरिया में है तो अब आप उस वैरायटी का सिलेक्शन नहीं करेंगे अगर वो उस डिजीज के लिए ससेप्टेबल, मतलब उस तरीके की डिजीज उस वैरायटी में ज्यादा लगती है। देन जेनेटिकल पोटेंशियल आई मेंशन कि भाई जेनेटिकल पोटेंशियल जब तक ज्यादा नहीं होगा, आप अगर देखें तो किसी भी वैरायटी का जो पोटेंशियल होता है एक होता है जेनेटिकल पोटेंशियल, एक होता है अटेनेबल यील्ड, एक होता है हार्वेस्ट यील्ड। तो जेनेटिकल पोटेंशियल जो होता है वो सबसे ज्यादा क्या पैदा कर सकते हैं आप उस वैरायटी का वो होता है। देन अटेनेबल यील्ड ये होता है कि भाई आप यहां तक पहुंच सकते हैं, एंड देन हार्वेस्ट यील्ड वो होती है, हार्वेस्ट पोटेंशियल वो होता है जो कि आपको फाइनली आप हार्वेस्ट करके आपको मिलता है। ठीक है, एंड देन कंपनी का सीड ऑलवेज खरीदें जो कि ब्रांडेड कंपनीज हैं, बिकॉज ब्रांडेड कंपनी अपनी रेपुटेशन बनाने के लिए कभी 2 नंबर के काम सीड मिक्सिंग नहीं करेंगे। अगर आप लोकल वैरायटीज लेंगे तो डेफिनेटली उसमें मिक्सिंग के चांसेस होते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि भाई हर एक में मिक्सिंग होगी ही होगी, बट चांसेस होती हैं। तो इसलिए क्योंकि आपका प्रोजेक्ट जो है जब आप कमर्शियल में जाएंगे तो इट रिक्वायर्ड अ गुड इन्वेस्टमेंट। तो आप इससे भी बचने के लिए कि भाई आप उस रिस्क को क्यों लेके आपका जो मिक्स सीड आ रहा है कि अच्छा वैरायटी और खराब वैरायटी दोनों का मिक्स करके सीड दे रहा है, तो इसलिए उसको अवॉइड करने के लिए आप ब्रांडेड सीड ही करनी चाहिए। अब अगला क्वेश्चन आता है कि भाई जो कमर्शियल वैरायटीज में आप कर रहे हैं, घर में कर रहे हैं 4 पेड़ लगा के टमाटर का, 10 पेड़ लगा के टमाटर का, तो आप कोई भी वैरायटी लगा सकते हैं। बट अगर आप कमर्शियल कर रहे हैं तो आपको ये करना है कि भाई आपके एरिया से जो अच्छी वैरायटी परफॉर्म कर रही है उसको आपने पहले साल लगा दिया, फिर आपने डिफरेंट सीड कंपनीज से कांटेक्ट किया और सीड कंपनीज से समझा कि भाई कौन कौन सी उनकी वैरायटीज हैं। अब उसके छोटे छोटे ट्रायल लगा दिए कि भाई आपने एक लाइन जो है एक वैरायटी की, 2 लाइन तीसरी वैरायटी की, इस तरीके से 3-4 और डिफरेंट वैरायटीज की टेस्टिंग करेंगे। तो
जो परफॉर्मेंस अच्छी निकल के आएगी उस वैरायटी के सीड को अगले साल आप करेंगे। बट स्टार्ट कहां से करेंगे? हम स्टार्ट वहीं से करेंगे जो सबसे अच्छा परफॉर्म करती हुई वैरायटी उस एरिया की है, उस वैरायटी को लेके हमें शुरू करना चाहिए। So this is all about the crop and variety. Let's move to the next. सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया कि एक हमने फसल सेलेक्ट की। अब फसल सेलेक्ट करने के बाद आपका क्या होता है कि कुछ फसल होती है, जैसे कुछ प्रोजेक्ट होता है कि भाई हम साल भर तक वही फसल करते रहेंगे। जैसे खीरे की बात की हमने, तो हम खीरा लगातार करते रहेंगे। तो उस प्रोजेक्ट में तो भाई आपको डिफरेंट हो सकता है, वैरायटीज खीरे की ही अलग अलग टाइम पे करना, ठीक है। बट ज्यादातर केस में, बट उस केस में जहां पे आपको साल भर तक लगातार एक ही फसल लेनी है, तो आपका स्ट्रक्चर जो होगा उसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा, बिकॉज आपको क्लाइमेटिक कंट्रोल करना पड़ेगा। तो उस ऑप्शन में तो आपको बस वैरायटी सिलेक्शन करना है, क्रॉप सिलेक्शन तो हो जाता है, एक क्रॉप सेलेक्ट किया उसकी को आप लगातार पैदा करते हैं। बट जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर में कम कॉस्ट लगा रहे हैं, कि आपने से फॉर एग्जाम्पल की लगा लिया शेड हाउस लगाया, अब शेड हाउस में आपका कुकुम्बर जो है 2 साइकिल हो गई, बट उसके बाद आपके पास जो 2 साइकिल हुई वो करीब 7 से 8 महीने में कंप्लीट हो गई, बाकी का 3-4 महीना आपके पास बचा हुआ है। अब कैसे करेंगे? क्योंकि आपने स्ट्रक्चर लगाया, आप खेती कर रहे हो, कॉमर्शियल खेती करने की प्लान कर रहे हो, तो उसके बीच में आपको उस एरिया को यूटिलाइज करना होगा। तो उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं? तो यू नीड टू डेवलप अ क्रॉप शेड्यूल, कि भाई पहले 3 महीने में मैं खीरा लगाऊंगा, जैसे ही मेरा खीरा निकलेगा उससे पहले मेरी सीडलिंग तैयार रहेगी, मैं टमाटर लगा दूंगा, और टमाटर जैसे ही खत्म होगा तो हम उसी एरिया में मे बी हम धनिया लगा देंगे, because this is something like coriander can also be grown in soilless. So इस तरीके से एक आपको पूरी सीक्वेंसिंग करनी पड़ेगी, जिसमें कि आपका जो ग्रोइंग एरिया है उस ग्रोइंग एरिया को आप अच्छे से यूटिलाइज कर सको। So the next question, what एनुअल साल भर का क्रॉप शेड्यूल करना होता है। वाई करना होता है कि जो हमारे रिसोर्सेज हमारे पास हैं हम उसको एफिशिएंटली यूटिलाइज करें। जैसे एक तो स्ट्रक्चर का भाई आपका कॉस्ट लगा हुआ है, अगर आप 12 मास उसको इस्तेमाल करेंगे तो आपका उसका जो एफिशिएंसी, यूज एफिशिएंसी होगी ज्यादा होगी। अब अगर देखते हैं कि आपने वहां पे लेबर रख रखी है, तो लेबर अगर क्या कहते हैं 8 महीने वर्सेस 12 महीने यूटिलाइज हो रही है, तो डेफिनेटली आपकी क्या कहते हैं बेटर रिटर्न आ रहा है आपका, जब आप राउंड द ईयर कर रहे हैं। सो दैट्स अनदर थिंग कि भाई एक बार आपने क्रॉप सेलेक्ट किया, तो क्रॉप सेलेक्ट करने के बाद क्रॉप शेड्यूलिंग कर ली कि भाई मेरा साल भर तक हम इस तरीके से अपनी पैदावार लेते रहेंगे। अब ये क्रॉप शेड्यूलिंग किस तरीके से होती है, लेट्स सी, एक हम आपको ग्लिम्स देते हैं। Okay, so now if you see, अब इसमें let me bring it down. अगर आप इसमें देखो तो हमने क्या किया है, जैसे पूरा ग्रीन हाउस है, अब उस ग्रीन हाउस में हमने जैसे चेरी टोमेटो का प्लान किया हुआ है, ठीक है। अब चेरी टोमेटो में भी स्टैगर्ड प्लांटिंग की, भाई कुछ कुछ इंटरवल पे जब प्लांटिंग आप करोगे तभी तो आपको क्या कहते हैं साल भर तक पूरी आपकी पैदावार मिलती रहेगी। सो उस एक जहां पे हमने चेरी टोमेटो लगाने की बात की, उसको भी हमने 3 सेक्शन में बांट दिया। अब 3 सेक्शन में बांटने के बाद पहले सेक्शन में अगर हम जाते हैं तो जर्मिनेशन के लिए हमने जो डाला, और ये पूरा सा दिखा रहा है मैंने जो प्लानिंग की है कि प्लांट पॉपुलेशन कितनी होगी इस सेक्शन में, 833 प्लांट लगेंगे। अगर हमारा 5 केजी पर प्लांट का प्रोडक्शन होगा तो इतना प्रोडक्शन होगा। एक्सपेक्टेड रेवेन्यू अगर हम 80 रुपए केजी के हिसाब से बेचेंगे तो ये आएगा। दिस इज समथिंग वर्किंग। अब यहाँ पे देखो आप, तो जर्मिनेशन मैंने क्या बोला कि भाई 1 से लेके 4, जिस दिन हम सोइंग करेंगे 4 से 5 दिन में जर्मिनेट हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका कुछ दिन तक सीडलिंग फॉर्मेशन होगा, फिर उसके बाद आपका वेजिटेटिव ग्रोथ होगा, ठीक है। अब इसी को आगे लेके चलेंगे तो ये फिर आपका हार्वेस्ट, ब्लू लाइन इज सेइंग हार्वेस्ट। अब ये हार्वेस्ट चल ही रहा है, आप देखो हमारा यहाँ पे दूसरा साइकिल का सीड प्लांटिंग हो गई, जर्मिनेशन हो गया। आर यू गेटिंग? मतलब हमने 127वें दिन पे, जैसे पहले दिन पे हमने पहले की सोइंग की, 127वें दिन में साल के हमने दूसरी क्रॉप चेरी टोमेटो की ही सोइंग कर दी, और फिर उसके बाद उसका सीड फॉर्मेशन होने लग गया, और फिर
कुछ एरिया से हमने, जैसे अभी ये कुछ एरिया में हार्वेस्ट चल नहीं रहा है और कुछ एरिया के जो पौधे खराब हो गए उसमें हमने ट्रांसप्लांटिंग कर दी और वेजिटेटिव ग्रोथ भी वहां पे शुरू हो गई। अब यहां से यहां तक का पोर्शन जो हमने कवर किया, ये पोर्शन आपका कॉमर्शियल ग्रोइंग जोन में नहीं जा रहा है, उसकी वजह से आप इसको एक नर्सरी बेड पे करके कंप्लीट कर सकते हैं। और जैसे ये वाली क्रॉप खत्म हुई आपकी, ये पूरी सी का क्रॉप में आगे अपना आगे का प्रोसेस शुरू हो गया एंड देन सेकंड क्रॉप की भी हार्वेस्ट शुरू हो गई। तो इस तरीके से आपका क्रॉप शेड्यूल बना होना चाहिए कि भाई हमको साल भर में किस तरीके से अपनी पूरी क्रॉपिंग करनी है। उसी तरीके से अगर देखो तो हमने कलर्ड कैप्सिकम का भी किया हुआ है कि भाई अलग अलग टाइम में कितना क्या करना है। तो दीज आर द थिंग्स which will give you the complete एनुअल प्लान। सो क्रॉप शेड्यूल इज कि भाई कब हमको अपनी जो ग्रोइंग जोन है, कब हमको उस एरिया में क्या करना है, साल भर तक का आपका प्लान तैयार होना चाहिए। ठीक है, सो दैट इज समथिंग लाइक क्रॉप शेड्यूलिंग। सो क्रॉप शेड्यूलिंग इज नथिंग, भाई आप दिनचर्या में क्या क्या करने चाहते हैं साल भर तक, वो इंफॉर्मेशन आपको एक पेपर पे लेके आना है। फैक्टर जो भी आपको कंसीडर करना है वो आपको ये भी देखना है कि भाई जब क्रॉप शेड्यूलिंग कर रहे हो तो ऐसे शेड्यूल करना है इस तरीके से कि भाई जब मार्केट में डिमांड है, से फॉर एग्जाम्पल हमने जो आपका चेरी टोमेटो का वो किया, तो चेरी टोमेटो सपोज जुलाई में सबसे ज्यादा महंगा बिकता है, तो आपका पूरा प्लानिंग इस तरीके से होना चाहिए कि जुलाई मंथ में ही हमको सबसे ज्यादा प्रोडक्शन मिले। उसके साथ साथ आपको क्लाइमेटिक कंडीशन को भी देख के चलना पड़ेगा कि भाई अगर गर्मी ज्यादा है तो उस समय हमें क्रॉप लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो उस तरीके से मे बी आपका क्या कहते हैं, जैसे हमने चेरी टोमेटो एंड चेरी टोमेटो का आपको दिखाया, तो क्लाइमेटिक कंडीशन के बेस पे मे बी एक चेरी टोमेटो ले लिया, दूसरा आपने कोई और क्रॉप ले लिया उसी जगह में। देन रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी ऑल्सो कि भाई आपके पास क्या पैसे मैन पावर एंड मार्केट, ऑल दीज थिंग्स में क्या अवेलेबल है, उसके बेसिस पे आपको अपना क्रॉप शेड्यूल डिसाइड करना होगा। सो अगला जो सॉफ्टवेयर में पार्ट आता है, भाई खेती करने में जो आपने सबसे पहले कर लिया कि आपने क्रॉप एंड वैरायटी सेलेक्ट कर ली, फिर उसके बाद आपने क्रॉप शेड्यूलिंग कर ली। अब अगला काम आता है प्लांटिंग प्रोसेस। ये सबसे बड़ा चीज जो होता है कि बीज से लेके आपका फल तक आने का जो प्रोसेस है, तो सबसे पहले कि हम प्लांटिंग करने का है। तो अगर हम प्लांटिंग एरिया की बात करें जिसमें हाइड्रोपोनिक प्रोजेक्ट, कॉमर्शियल प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, उसमें जर्मिनेशन एरिया या जर्मिनेशन चैम्बर अलग होता है, नर्सरी अलग होती है और कॉमर्शियल एरिया अलग होता है। ठीक है, अब इसमें कैसे करना है, आपका सबसे पहला जो होगा ग्रोइंग मीडिया प्रिपरेशन करना है। जो भी आप अगर सॉइल लिस्ट में कर रहे हैं तो इफ इट इज अ कोकोपीट, तो यू हैव टू डू ऑल द प्रिपरेशन रिक्वायर्ड कि भाई आपने ब्रिक को पहले भिगाया, उसका ईसी मेजर किया, इनकेस ईसी ज्यादा है तो फिर आपने उसको ईसी को न्यूट्रलाइज करने के लिए, कि ईसी को कम डाउन करने के लिए जो भी ऑपरेशन करना है वो ऑपरेशन किया। सो ऑल दोज थिंग्स विल कम अंडर ग्रोइंग मीडिया प्रिपरेशन। और उसमें भी कुछ लोग अपना यूनिक ग्रोइंग मीडिया इस्तेमाल करते हैं, जैसे उसमें मिक्स ऑफ कोकोपीट, परलाइट एंड फॉर द नर्सरी यू कैन ऑल्सो मिक्स द वर्मिकुलाइट। एंड देन उसके बाद जो सीडिंग होता है, सीडिंग में जो सबसे बड़ा रोल होता है कि कितना डेप्थ में आपको सीड प्लांट करना है। अगर आप ज्यादा डेप्थ में डाल देंगे तो उसका जर्मिनेशन पे इंपैक्ट होगा। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अ सीडिंग एट द टाइम ऑफ सीडिंग यू हैव टू चेक इज, one is the depth, another is the moisture content in your growing media. Then you have to put the whole thing into a germination chamber where you have to maintain your normal required temperature for the commercial project. But अगर घर के लिए करना है तो आपने प्लांटिंग करी और प्लांटिंग करके कंडीशिव इन्वायरमेंट में रख दिया, वो ऑटोमेटिकली जर्मिनेट हो जाएगा। और एक बार जब जर्मिनेट हो जाता है तो देन इट इज गोइंग टू गो टू नर्सरी एरिया। और नर्सरी के बाद, because see why we want to keep this germination, nursery and commercial area, because
जो आपका फोकस होना चाहिए कि मेरा जो कॉमर्शियल ग्रोइंग एरिया है उसमें से कभी भी कोई भी ग्रोइंग होल या ग्रोइंग बैग खाली नहीं होना चाहिए, इवन नॉट फॉर अ डे, बिकॉज वो कॉमर्शियल ग्रोइंग एरिया है और वहीं से आपको प्रोडक्शन मिलना है। एंड देन फाइनली यू गो फॉर ट्रांसप्लांटिंग. So let's see some of these things like germination chamber. So germination chamber already बने बनाए भी मिलते हैं और मे बी आप बनवा भी सकते हैं. It depends on the project size. अगर project size बड़ा है तो it is always recommended that you should go for your own germination chamber. और जर्मिनेशन चैम्बर का बेसिकली काम यही होता है कि वो जो भी सीड की जो जर्मिनेशन के लिए टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी की रिक्वायरमेंट होती है वो उस चैम्बर के अंदर मेंटेन करके रखता है, जिससे कि जर्मिनेशन फास्ट और बेटर होता है. Then second is a nursery area. If you see, this is the nursery area where we can accommodate more number of a plant in a smaller area. अब यहाँ पे अगर क्या कहते हैं आपका प्लांट बड़ा होके मीन्स 10% आपके खराब भी हो गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है. बट अगर यहाँ पे आपका कॉमर्शियल ग्रोइंग एरिया खाली है और यहाँ पे आपके पास सीडलिंग नहीं अवेलेबल है तो इट इज समहाउ फेल्योर इन योर सिस्टम. ओके, anyway, so after that it is a commercial growing area, so where you are growing your crop. And with this I think I have exhausted my time. So if anybody is having question, they can raise their hand and ask their question. I'll continue this thing on Monday, because Monday we will complete this. We are going to have one more thing about growing system of hydroponics. And third, I will give you a video on virtual tour to my farm. So if anybody wants to ask any question, they can raise their hand. So no one wants to have any question, no discussion. Yeah, Divya. गुड आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून दिव्या. सर आपने अभी बोला कि जैसे हमें मिक्स करना होता है लोकल और एग्जॉटिक क्रॉप्स, और लेकिन सपोज अगर मैंने एक फार्म डाला है जो कि ईयर राउंड एक बना रहा है, मतलब ईयर राउंड एग्जॉटिक है, तो उसमें भी क्या मुझे ये देखना पड़ेगा कि किस मंथ में उसकी सबसे ज्यादा प्राइस जो होता है वो प्राइस एलोकेशन किस मंथ में सबसे ज्यादा है? डेफिनेटली यस, बट आप जो कह रहे हो ना मिक्स ऑफ लोकल एंड एग्जॉटिक, आई डोंट मीन दैट. मेरा ये कहना है कि जो आपका सपोज आपने चेरी टोमेटो आइडेंटिफाई किया एज अ क्रॉप, अब वो चेरी टोमेटो में आपके बाजार में लाल वाला गोल्ड टोमेटो सबसे ज्यादा बिकता है चेरी का, ठीक है, एक साइज का, तो वो आप 80 to 90% एरिया में आप वो वाला वैरायटी लगाएंगे. एंड साथ में अगर आप चेरी टोमेटो में ही वैरायटीज देखेंगे तो पेयर शेप की भी है, हार्ट शेप की भी है, येलो कलर की भी है, पर्पल कलर की भी है. सो 20% एरिया में मे बी यू कैन एलोकेट ऑल दीज थिंग्स. सो होगा क्या कि जो आपका बायर होगा वो बायर आपकी उस यूनिक वैरायटीज के लिए आपका नॉर्मल वैरायटीज को भी ले जाएगा. ओके, सो दैट वाज द इंस्ट्रक्शन. तो फिर इसमें yeah, okay, okay, yeah, go ahead. सर फिर अगर ऐसा go ahead, अगर ये वाली मिक्सिंग हम अगर ये वाली मिक्सिंग हमने कर दी है जो प्रॉपरली मतलब इसकी, तो फिर तो भी क्या मंथ वाला जो फैक्टर है वो दिमाग में रखना होगा कि व्हेन द प्राइसेस गो हाईएस्ट? अब इसमें जो है जो नॉर्मल वाली वैरायटी है उसके लिए डेफिनेटली यस, बट अगर यूनिक वैरायटी वाली जो है, यूनिक वैरायटी का तो भाई हमेशा पैसा ज्यादा देगा, ठीक है. सो मंथ एंड क्रॉप शेड्यूलिंग इज अ वेरी क्रूशियल फॉर द नॉर्मल एंड कॉमन काइंड ऑफ वैरायटीज, ठीक है. ओके,
Yeah, Okay. Abhishek. Thank you, sir. Thank you. Yes, sir. Basically, I'm sorry to first. Actually, I'm a bit late to join the sessions. Yep. So today is my first session. Yep. So is it to get the recordings of the previous sessions or some material like which I can go through? Definitely what I'll do, I'll just something like share a link on the group itself from the first to till now. So you can just go through and you will get whatever we discussed during that session. Thank you, sir. Okay. Yeah. So anybody else want to have some question, or we should conclude? I think today's discussion was a very short, so thoda sa hi tha. So it's a less question. Divya, I think Divya, you have again question, or Divya, you have again question or what? No, sir. It was a Okay. network problem. Yeah. Chal. So Yalu Buddha. Yes. Sir, good afternoon. Good afternoon. Yeah. Hello. Yeah. Sir, sir, you give the list of those commercial varieties of all There is a one lecture on that. So in that lecture, Okay, definitely I'm going to share a good number of varieties and some of those good companies, name of good companies. So that I've just reserved for that, I think next to Monday session. That is a crop and varieties. We are going to discuss on that only. Okay, sir. Yeah. Okay, sir. Okay. So with this, I think I am just closing this session and hope everybody have attempted the quiz. And if there is any further question or anything, then we can just something like you post your query on the group and we'll just discuss there only. Okay. Thanks for connecting. But one thing is be on time. Don't be late because it is killing others' time also. Thank you. Bye-bye. Enjoy.